Let's continue the interpretation from page number 2021. A few words were left there on the page number 20. Let me start from there. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. I'm there on the top of now. Men of such extraordinary. Extraordinary means of a very high standard. Means that is not normal one. Of extraordinary courage, साहस, wisdom, बुद्धि, generosity, उदारता, that their like may never be known again, and those sort of people will not take birth again on the earth. You must know the meaning of these courage, wisdom, generosity, because most probably you can find one word there as a word meaning in your final examination, especially in the comprehension. So be very careful whenever you are reading out these. Courage, wisdom and generosity, that their like may never be known again. Means these were the people, those names which were being given: Oliver Tabus, Walter Sisless, Chief Littlus, Yusuf Dadus, Braham Fisher, Robert Subkus, etc., etc. Those were the people of extraordinary courage, wisdom and generosity. बहुत ज़्यादा साहस वाले, बुद्धिमता वाले और उदारतावादी. That they are like, उनके प्रकार का, may never be known again. दूसरा नहीं होगा यहाँ पर, या लोग नहीं जान पाएंगे उस स्टैंडर्ड के लोगों को. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. Perhaps it requires such depths of oppression, दमन की वो गहराइयाँ, दमन की वो पराकाष्ठा, to create such heights of character. तभी ये इस टाइप के पात्र या व्यक्ति जन्म लेते हैं. जब जितना ज़्यादा दमन होता है उतना ही अच्छा एक कैरेक्टर या एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है. My country is rich in minerals. Minerals means natural precious things which are found in the soil of the earth. My country is rich in the minerals. मेरा देश minerals के अंदर बहुत ज़्यादा धनी है. And gems, और वो सारे रत्न जो है, gems भी वही होते हैं, natural, that lie beneath its soil. Beneath means under, जो इसकी धरती के अंदर नीचे दबे हुए हैं. But I have always known that its greatest wealth is its people. परंतु मेरे को ये पता है कि इसका किसी राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा जो धन होता है वो इसके लोग होते हैं. Finer and truer than the purest diamonds. Finer, finer, finest degree of comparison. जो ज़्यादा शुद्ध होते हैं, and truer, और ज़्यादा अच्छे होते हैं than the purest diamonds. वो सबसे अच्छे, diamond means जो वो डायमंड होता है आपका कार्बन सब्सटेंस, उस हीरे से भी, सबसे जो है अच्छे हीरे से भी अच्छे प्रकार के और सच्चे इसके जो है लोग होते हैं, जो कि हीरों से भी ज़्यादा कीमती होते हैं. It is from these comrades in the struggle, comrades, associates, acquaintance, friends. It is from these comrades in the struggle, मैंने अपने दोस्तों से इस स्ट्रगल के दौरान सीखा, that I learned the meaning of courage. साहस का मैंने असली मीनिंग अपने दोस्तों से सीखा. Time and again, बार बार, I have, या कई बार, I have seen men and women risk and give their lives. कि आदमी और औरत, men and women, risk and give their lives, वो जोखिम उठाते हैं. And give their life means they sacrifice their life for an idea, एक विचार के लिए. I have seen men stand up to attacks and torture. कि मैंने ये देखा है अपनी ज़िंदगी में कि आदमी stand up to attacks. Attack means जब उनके ऊपर कोई दमन होता है या उनके ऊपर आक्रमण होता है, उसकी टक्कर लेते हैं. And torture. Torture होता है यातनाएं, और यातनाओं के खिलाफ वो लड़ते हैं. Without breaking, बगैर अंदर से टूटे हुए, means बगैर जो है अपने को दिल तोड़े हुए अपना. Showing a strength and resilience that defies the imagination.
शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस होता है किसी चीज़ के प्रति जब आप फाइट बैक करते हैं, मीन्स आपकी रीबाउंसिंग कैपेसिटी। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, रेजिलियंस आपके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो हमारी परिकल्पनाओं से बाहर होती है। डिफाइज मीन्स उनको वो छका देते हैं, जो हम जान भी नहीं पाते, उससे परे वो लोग जो है उनके अंदर जो एक स्ट्रेंथ होती है और एक लचीलापन होता है जिससे वो इन चीज़ों को बियर करते हैं जो हमारी सोच से परे होते हैं। I learned that courage is not the absence of fear but the triumph over it. It's a beautiful line. You must underline this one in your book. I learned that courage was not the absence of fear. मैंने ये जाना that courage, साहस, वास्तव में आपके अंदर डर का ना होना नहीं होता है, बल्कि उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करना होता है। ट्रायम्फ, टू गेट विक्ट्री, उसके ऊपर विजय प्राप्त होना है। कहने का मतलब ये है, बहादुर आप इसमें नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि असली बहादुर वो है जो अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, बट ही हु कनकर्स दैट फियर्स, परंतु वो होता है जो उस डर के ऊपर, कनकर मीन्स ट्रायम्फ, जो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। Triumph, conquers, victory, these are all synonyms. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. There is no person on this earth who is born with an idea of hate on the basis of skin or of his background or रिलीजन। कोई भी आदमी इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा पैदा नहीं होता जिसके अंदर पैदाइशी नफरत हो किसी के रंग को देख के, किसी की पृष्ठभूमि को देख के। बैकग्राउंड मीन्स हाउ डू यू लिव और व्हाट इज़ योर मीन्स फाइनेंशियल स्टैंडर्ड एंड ऑल दैट वन, या किसी के धर्म के आधार पर। आपने देखा क्लास में हम सब, इट्स ए होमोजीनियस क्लास, वी ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। हमारे यहाँ क्लास में 2-3 रिलीजन्स के बच्चे पढ़ते हैं, और जो अच्छी, जो खास करके जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह होता है वहाँ हर एक रिलीजन का बच्चा आता है। तो कोई भी हमें ये चीज़ें नहीं सिखाता, बाय बर्थ हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आती। कहने का मतलब ये है, ये चीज़ें हम बाद में सीखते हैं अपने लाइफ में, हमें कोई सिखाता है उन चीज़ों को। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को, आई एम जस्ट गोइंग इन हिंदी ओनली, People must learn to hate, लोगों को नफ़रत सीखनी पड़ती है। And if they can learn to hate, अगर वो नफ़रत को सीख सकते हैं, they can be taught to love, उनको प्यार आराम से सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart that its opposite, क्योंकि for love comes more naturally, प्यार हमारे अंदर स्वाभाविक तौर पर आता है, to a human heart, हमारे अंदर, than its opposite, नफ़रत की बजाय। opposite means contrary, कहने का मतलब ये है, नफ़रत तो हमारे को सिखाई जाती है, पर प्यार हमारे अंदर नेचुरल तरीके से होता है, उसको सिर्फ थोड़ा सा बढ़ावा देने की ज़रूरत होती है। Even in the grimmest times in prison, grimmest means very severe or highly sorrowful moment, very sad. Even in the grimmest times in prison, सबसे उदासी भरे, यहाँ तक कि सबसे उदासी भरा जो मेरा प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर समय होता था, या समय के दौरान, when my comrades and I were pushed to our limits means जब हमारे को कठोरतम दर्जे की पीड़ा दी जाती थी, हमारे को बिल्कुल हद से ज़्यादा यातना दी जाती थी, push to our limits, मेरे और मेरे दोस्तों को, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. मैं वहाँ पर, glimmer means very silver lining, very thin hope, छोटी सी आशा।
ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, किसी गार्ड के अंदर मैं देखता था, एक गार्ड के अंदर देखता था, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, परंतु यही पर्याप्त था, इनफ मीन्स सफिशेंट, टू रीअश्योर मी, मेरे को सांत्वना देने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मेरे को आगे चलने के लिए, कीप मी गोइंग मीन्स टू कंटिन्यू फर्दर। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की अच्छाई एक लौ की तरह से, एक ज्योति की तरह से है जिसको छुपाया जा सकता है परंतु उसको कभी भी एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाया नहीं जा सकता, मीन्स अच्छाई आखिरी में आकर के रहेगी। So it was a very brief session, and I hope you will just go through this one. I'll be back tomorrow again. So till then you go through this one. Have a nice day. Bye bye.